A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue this chapter number second of your book, Planning and Development, or you can say Politics of Plan Development. Okay, so in our last class, we discussed about the key controversies. And we have discussed about the two main key controversies after independence and for the planning and development, and those key controversies were agriculture versus industries and the public sector versus private sector. And these key controversies, like these challenges or difficulties and critiques are there in today's time also. Critiques are there. Okay, so now class, our today's topic is major outcomes. Okay, what are the major outcomes? What were the major outcomes of the planning and development? So you please revise chapter number 1. Okay, where we talk about the three main challenges after independence. What India have to gone through. Gone through for the elevation of poverty and for the India has to establish many things. Three of the main challenges were like shaping and building the nation, where we talk about the talked about the integration and national integration and unity of the nation. Okay, establishing democracy, this was also the main this was also the one of the main problem or challenge faced by India after independence, because establishing democracy is like very much important, because for a very long span of time only one party was there which was ruling India, okay, which was governing India. So डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड आफ्टर दैट इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग, एंड दिस वन which we are like studying about it in this chapter. And ensuring development and well-being, this is one of the most important challenge. Okay? This was one of the most important challenge faced by our government or our citizens, or even आज की डेट में भी ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है इंश्योर डेवलपमेंट. हमने कहा किया है कुछ फील्ड्स में, हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, ठीक है, बट ईच एंड एवरी सिटीजन को डेवलपमेंट और वेलबींग जो होना चाहिए वो नहीं मिल पाया. इंश्योरिटी नहीं मिली है कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का बोल सकते हो या किसी एक स्टेट का बोल सकते हो. कुछ स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, while some states like are in the worst conditions in today's date also. ठीक है, so ये जो है सबसे डिफिकल्ट टास्क था, सबसे डिफिकल्ट चैलेंज रहा है, और इवन आज की डेट में भी सबसे डिफिकल्ट चैलेंज यही है डेवलपमेंट को इंश्योर करना. सो व्हाट वर द मेजर आउटकम्स ऑफ द प्लान्ड डेवलपमेंट? सो एज यू ऑल नो, land reforms did not take place effectively in most parts of the country. So for the equality and for giving the opportunity to the poor and for elevating the poverty, our government started this land reforms. Like they were uh, they were doing efforts to reform the ownership and regulations of land in India, even, or you can say land distribute भी करने की कोशिश की थी इंडियन गवर्नमेंट ने लैंड होल्डर्स से लेके लैंडलेस को देने के लिए, जिससे कि वो एग्रीकल्चर कर सके या कोई स्पेशल पर्पस के लिए उस लैंड का यूज कर सके. बट जो ये लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई थी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, अपने प्लानिंग में जो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई थी वो बहुत इफेक्टिवली जो है नहीं प्लेस हो पाया था. एंड क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वो इतना इफेक्टिवली क्यों प्लेस नहीं हो पाया था, why land reforms did not take place effectively in most part of the country, is because political powers remained in the hands of the land owning classes. जो political power थी वो
जो जितने भी लैंड ओनिंग क्लासेस थी ना उन्हीं के पास रह गई थी, तो ऑब्वियसली वो बायस थे, ठीक है। उन्हीं के पास पावर होने की वजह से, अथॉरिटी होने की वजह से ये जो लैंड रिफॉर्म्स था, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो एक इनिशिएटिव लिया गया इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, वो फुलफिल नहीं हो पाया, वो इतना इफेक्टिवली प्लेस नहीं हो पाया। ये फर्स्ट रीजन है। एंड द सेकंड रीजन इज big industrialists continued to benefit and thrive while poverty did not reduce much. Now, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, दे कंटिन्यू टू बेनिफिट एंड फ्लरिश देयर लाइव्स, वाइल जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है, या फिर आप बोल सकते हो जो रिच इज बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग मोर पुअरर, ये कंडीशन हो रही थी। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रह रहे थे, ठीक है, फ्लरिश अपने आप मतलब उनकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रही थी, बट जो पॉवर्टी है वो इतनी रिड्यूस नहीं हो सकी, ठीक है। तो ये दो मेन रीजंस हैं कि आपके जो मेजर आउटकम्स रहे हैं, ठीक है, मेजर आउटकम्स क्या, प्लान डेवलपमेंट के जो इफेक्टिवली प्लेस नहीं हो पाए, प्लान डेवलपमेंट के, और क्या ऐसे रीजन थे जिससे कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो इंश्योर नहीं हो पाई, ठीक है। कुछ हद तक डेवलपमेंट हुई, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल पावर जो है, पॉलिटिशियंस जो थे उस टाइम पे, लैंड ओनिंग क्लास थी, उनकी डेवलपमेंट हुई। बट जो पोवर्टी है या पुअर रूरल क्लास है, पुअर क्लास है, उनका जो उनकी जो लाइफ जो है उनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया, ठीक है, पोवर्टी इतनी ज्यादा रिड्यूस नहीं हुई थी। So the early initiatives for planned development were at best realizing the goals of economic development of the country and well-being of all its citizens, ठीक है। So नाउ जो जितने भी अर्ली इनिशिएटिव्स लिए गए थे हमारे गवर्नमेंट के थ्रू फॉर द प्लान डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट करनी है, प्लानिंग कमीशन को बना, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए, ठीक है। एंड एट बेस्ट रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमारा इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा डेवलप करेगा, और इवन किया भी था इकोनॉमी डेवलप हमारी कंट्री में, and well-being of all of its citizens, ये one of the most important जो था, एक एम था, बट वो जिस लेवल पे सोचा गया था ना कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करनी है, हमें वेलबींग जो है सिटीजन्स का वो इंश्योर करना है, वो नहीं हो पाया था, राइट। So the inability to take significant steps in this direction is the very first stage was to become a political problem. So one of the main problem, ठीक है, क्या थी, one of the main problem कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट थी, ठीक है, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, और उस टाइम पे उनके जो कुछ स्टेप्स थे, इंपॉर्टेंट स्टेप्स नहीं ले पाए थे उस टाइम पे, कि जो भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया है अगर वो अच्छे से फुलफिल नहीं हो रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने उसकी अगेंस्ट में कोई स्टेप नहीं लिया, तो उनकी इनेबिलिटी थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस डायरेक्शन की, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, क्योंकि मोस्टली जो लैंड ओनिंग क्लासेस थे वही पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिक्स में वही थे, तो इससे ये था कि वो लोग काफी बायसनेस हो रहे थे और स्टेप्स लेने में काफी प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। सो दोज who benefited from unequal development soon became politically powerful and made it even more difficult to move in the desired directions. Now जितने भी those who benefited from the unequal development, ठीक है, rich is becoming more richer, poor is becoming more poor, तो यहाँ पे big industrialists, politicians, वो तो उनको तो बेनिफिट मिल ही रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स तो लिए ही थे, बट उसका जो फायदा है वो किसने लिया, ठीक है, फायदा बोल सकते हो, या किसकी लाइफ फ्लरिश हुई ज्यादा, पॉलिटिशियंस की, लैंड ओनिंग क्लासेस की। तो ये जो लैंड ओनिंग क्लासेस जो बेनिफिट हुआ वो और ज्यादा पावरफुल बन चुके थे, और ये जो प्रॉब्लम थी, और मतलब ये जो डेवलपमेंट हुई थी पॉलिटिकली, जो लैंड ओनिंग क्लासेस और जो भी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो पावरफुल बने, तो ये क्या हो गया था, ये इन्होंने क्या किया,
और ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया कि हमें हमारा जो एम था, ठीक है, वेलबींग का, to ensure well-being of all its citizens and development for all the development, economic development, social development for all the members of the country, ये हमारा desired aim fulfill नहीं हो पाया. Okay, so continue. ओके, सो मेजर आउटकम्स क्या क्या थे? फर्स्ट में हम मेजर आउटकम्स में अंडर दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट फाउंडेशंस. बेसिस क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट. लैंड रिफॉर्म्स, अंडर दिस वी विल टॉक अबाउट कि ये क्या टेक्निक थी, ठीक है, कौन सा सेक्टर ज्यादा, जो एग्रेरियन सेक्टर था, ठीक है, उसके लिए लैंड रिफॉर्म्स वाली टेक्निक यूज की गई, बट उसमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी लेकर आई गवर्नमेंट जिससे कि इंश्योर कर सकें, बट हम इसके बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हम लाइक 8th-9th क्लास से पढ़ रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में, जहाँ पे HYV सीड्स का यूज किया गया, प्रोडक्शन ज्यादा हुई, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हुई, ठीक है. व्हाइट रेवोल्यूशन, तो व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि जिससे व्हाइट मतलब मिल्क, अमूल का आप बोल सकते हो कि अमूल की फाउंडेशन हुई थी व्हाइट रेवोल्यूशन से 1970s के टाइम पे. और इस टाइम पे काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी, ठीक है. गुजरात का है ये एग्जांपल, वैसे गुजरात में हुआ था व्हाइट रेवोल्यूशन. फिर और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी, उनके बारे में हम अंडर दिस टॉपिक मेजर आउटकम्स में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट मेजर आउटकम इज फाउंडेशन. फाउंडेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाउंडेशन, ठीक है. फाउंडेशन मींस बेस, ठीक है, कोई एक बेसिस हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, उसको हम फाउंडेशन बोलेंगे. सो एन असेसमेंट ऑफ द आउटकम्स ऑफ दिस अर्ली फेज ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, ठीक है. एक जो असेसमेंट था, ठीक है, जो जितने भी आउटकम्स थे, जितने भी हमारी प्लानिंग थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे, जो हमारे प्लान डेवलपमेंट था, उसको असेस करना बहुत जरूरी था. एंड उसका जो असेसमेंट हुआ था, it must begin by the acknowledging the fact that the foundation of India's future economic growth were laid, ठीक है. अब इसका जो फाउंडेशन था, द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ, कि फ्यूचर की इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो इसी टाइम पीरियड से, ये जो प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स निकाले थे, इसी 5 ईयर प्लान्स में, जो आज के टाइम पे हम देखते हैं ना कि इतनी डेवलपमेंट हुई है, इरिगेशन अच्छा है, कि पावर जनरेशन अच्छा है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, जो प्रेजेंट डे इंडिया में हम देख रहे हैं, उसका फाउंडेशन बेसिक जो था, स्टार्टिंग पॉइंट जो था, वही टाइम पीरियड था 1950s का टाइम, जहाँ पे ये सारी चीजें, एक आप बोल सकते हो कि नींव रखी गई, ठीक है. नींव रखते हैं, बट काम क्या होता है, घर बनाने के लिए नींव रखते हैं, पर वो नींव जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए. नींव रखी, पर वो घर कब तक बनता है, बहुत टाइम लग जाता है. तो जस्ट लाइक दैट, कि फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है, हम इसी पीरियड को बोलेंगे. 1950s का जो टाइम है, इसी टाइम पीरियड को हम बोलेंगे. Okay, so obviously these include mega dams like Bhakra Nangal, Hirakud for irrigation and power generation. जो आज के टाइम पे जो मेगा डैम्स जो उस टाइम पे बने थे, भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड डैम, ठीक है, दामोदर वैली हो गया, तो इतने सारे डैम्स बने, तो उसका जो हम बेनिफिट ले रहे हैं, आज के टाइम पीरियड में ले रहे हैं कि इरिगेशन अच्छा हुआ, पावर जनरेशन अच्छा है, उस टाइम पे बना, तभी तो हम आज उसको यूज कर पा रहे हैं, यूटिलाइज कर पा रहे हैं, राइट. सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में कुछ हैवी इंडस्ट्रीज थी, जैसे स्टील प्लांट्स हो गई, टाटा स्टील प्लांट हो गया, ठीक है, और भी स्टील प्लांट्स है आपके, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, डिफेंस प्रोडक्शन हो गया, ठीक है. तो ये जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर में, ये सब, इनकी भी स्टार्टिंग कब से हुई थी, इसी पीरियड में, इसी ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में स्टार्ट हुई थी. तो हम बोल सकते हैं हैवी इंडस्ट्रीज हो गया, मेगा डैम्स हो गए. आफ्टर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, नॉट स्ट्रॉन्ग, इम्प्रूव करना, ठीक है. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी स्लोली एंड ग्रेजुअली काफी इम्प्रूव हुआ है. इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं. तो इन सब का जो फाउंडेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ये जो 1950s का टाइम है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इनिशियल ईयर्स थे, यही फाउंडेशंस हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आज के टाइम पे हमें बहुत इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प आउट कर रही है. So yet much of the later economic growth, including that by the private
private sector may not have been possible in the absence of these foundations. ठीक है, ये जो जितने भी आपके फाउंडेशंस हैं, सॉरी, ये जितने भी आज की हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो, वो ये पॉसिबल नहीं होता अगर ये जो फाउंडेशन है, बेस जो है वो नहीं होता. ऑब्वियसली क्रिटिक्स वर आल्सो देयर, क्रिटिक्स थे, ठीक है, सब में जो मेगा प्रोजेक्ट्स बने थे बाद में, उसके लिए भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए थे कि जैसे कि अब भाखड़ा नांगल डैम बन रहा है, तो अब डैम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए, और लैंड अब लैंड जो है एक ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे खाली जमीन है वहां पे बना लिया. अब रिवर जहाँ से बह रही है, ठीक है, उसी वहीं पे हमें फ्लो कर रही है, वहीं पे हमें डैम कहीं पे बनाना पड़ेगा, और उसके लिए लैंड की भी हमें जरूरत है. अब उस लैंड में जो पर्टिकुलर एरिया लोग रह रहे हैं, ठीक है, रिवर के आसपास का एरिया ऑब्वियसली बहुत इनहैबिटेड होता है, तो उनका लोगों का डिस्प्लेसमेंट होना, बेनिफिट्स हो रहे हैं, बट क्रिटिक्स भी बहुत थे कि लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, लोग कहाँ जाएंगे, तो क्रिटिक्स भी बहुत थे. बट ये जो फाउंडेशन, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो बेस बनाया गया था, तो आज के टाइम पे जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, अब इस बेस के बिना पॉसिबल नहीं थी. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर आउटकम की एक बेस रखा गया. ठीक है, नाउ next major outcome is land reforms. Okay, so as you all know, what is land reform? First of all, land reforms, it is the efforts to reform the ownership and regulation of land in India. Efforts to reform the ownership and regulation of land in India, or you can say redistribution of land by the union of government from the land owning class, or you can say landholders, to the landless people for the agriculture purpose or for the specific purpose for the setting up of the small scale industries. ठीक है, तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स, ये आपका लैंड रिफॉर्म है. And especially in this agrarian sector, or you can say agriculture sector, this period witnessed a serious attempt at land reform. First 5-year plan पूरा ही आपका एग्रीकल्चर पे बेसिस था. ठीक है, इरिगेशन पे जो बजट निकाला गया था, बजट था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट थी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा थी. चाहे वो डैम्स बन रहे हैं तो उससे इरिगेशन अच्छा होगा, तो इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ही था. Right, so in the agrarian sector, this period witnessed a serious attempt at land reforms. काफी serious attempt रहे हैं, काफी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस करके, और गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लाइक एफर्ट्स लगाए लैंड रिफॉर्म्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है, बट व्हाट हैपेंड, the most significant and successful of this was the, अब ऐसा नहीं था कि कुछ लोग बोल रहे हैं मैम इफेक्टिवली तो नहीं हुआ, बट इस लैंड रिफॉर्म्स के वजह से ही जो बहुत सिग्निफिकेंट हम बोलते हैं ना स्टेप, जो सिग्निफिकेंट जो हम बोलते हैं ना सक्सेस हमें जो मिली, वो क्या थी? अबॉलिशन ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी सिस्टम उस टाइम पे काफी ज्यादा था, और काफी एक्सप्लॉइटिव, यू कैन से कि काफी एक्सप्लॉइटेड भी था जमींदारी सिस्टम. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, उस जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने में ये जो पीरियड है, ये जो लैंड रिफॉर्म है, काफी हेल्पफुल रहा. It released land from the clutches of a class that had little interest in agriculture. So now some people are there, ठीक है, अब जिनके पास हजार बीघा जमीन है, बहुत जमीन है, बट उनको कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर कि हमारे पास लैंड है, और वो मतलब हम इतने मतलब पैसे वाले हैं, हमारे पास इतनी लैंड है, हम इस लैंड में ये कर रहे हैं, तो जस्ट कि ऐसी लैंड्स को रिलीज करवाया जो हायर क्लास या बिग क्लास पीपल के पास थी, या फिर आप बोल सकते हो बहुत बिग इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कुछ लैंड्स भी थी,
तो उनको लैंड से कोई मतलब नहीं था, उनको एग्रीकल्चर से कोई मतलब नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं करते थे, बट जस्ट उनके पास लैंड थी। तो इस चीज को उन्होंने क्या है लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू रिलीज करवाया ऐसी लैंड्स को। इट रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। एंड अब लैंड रिफॉर्म से जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स खेलते थे, डोमिनेट करते थे रूरल पीपल को, तो वो क्या कर रहे थे, वो भी क्या कर रहे थे कि इस चीज को उन्होंने रिड्यूस किया। किसने? लैंड रिफॉर्म टेक्निक्स ने काफी हद तक इस चीज को रिड्यूस किया था। डोमिनेटिंग जो पॉलिसीज थी, पॉलिटिक्स जो लैंडलॉर्ड्स प्ले कर रहे थे। ओके, सो नाउ सेकंड वन इज attempts at consolidation of land were also fairly successful। ठीक है, attempts at consolidation, attempts at consolidation of land were also fairly successful। it means कि जितने भी जो भी प्रोसेस था, ठीक है, जो लैंड को एक यू कैन से कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एक्शन लिया गया था, ठीक है, इतना सॉलिड एक्शन लिया जा रहा था जिससे कि जो लैंड है वो फेयरली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो और ये बहुत हद तक जो है सक्सेसफुल भी हुआ था। एंड ये सबसे ज्यादा चैलेंजेस भी इसमें फेस करने को मिले थे। और क्या क्या चैलेंजेस थे, ठीक है, लाइक अब उस टाइम पे क्या था कि जैसे छोटे छोटी लैंड्स थी, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे स्मॉल स्मॉल लैंड्स भी थी, ठीक है, टुकड़ों में थी कि ये जो है एक पर्सन का है, ए पर्सन का है, ये वाली लैंड ए पर्सन की है, और ये वाली लैंड बी पर्सन की है, और ये वाली लैंड बी पर्सन की है। तो स्मॉल स्मॉल जो लैंड्स थी वो उनको क्या किया गया था, आपस में जोड़ने की कोशिश की थी। ब्रिंगिंग स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड टुगेदर इन वन प्लेस सो दैट द फार्म साइज कुड बिकम वायबल फॉर एग्रीकल्चर। अब छोटे छोटे पीसेस को क्या है, उन्होंने क्या करने की कोशिश की थी, साथ में लाने की कोशिश की, और इससे एक एग्रीकल्चर, ठीक है, एक वायबल लैंड बना सके जिससे कि एग्रीकल्चर बहुत इजीली हो सके, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए जो वो लैंड जो है वायबल हो सके। तो ये भी बहुत फेयरली आपका जो है सक्सेसफुल रहा। बहुत चैलेंजेस फेस करने को मिले, लोगों ने बोला कि हम अपनी लैंड ऐसे कैसे दे दें, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए थे कि ये तो लैंड मेरी नहीं है, ये लैंड इसकी है, ऐसे ऐसे करके बहुत चैलेंजेस आए थे। बट ये चैलेंज भी गवर्नमेंट ने समहाउ जो है फुलफिल कर लिए थे। तो ये दो जो थी, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम बहुत हेल्पफुल था लैंड रिफॉर्म्स की वजह से, एंड अटेम्प्ट्स एट कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, ठीक है, जब छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड को साथ में लेकर आना, उससे स्ट्रॉन्ग बनाना, ये भी बहुत फेयरली सक्सेसफुल रहा। बट कुछ और भी कंपोनेंट्स थे लैंड रिफॉर्म्स के जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। लाइक though the laws were made to put an upper limit or ceiling to how much agricultural land one person could own, people with excess land managed to evade the law। अब लॉज पर बहुत सारे लॉज बना दिए गए कि है ना, आपके पास इतनी ही लैंड होनी चाहिए, इससे ज्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए, या फिर सीलिंग, ठीक है, सीलिंग मतलब कि एक पर्सन के पास कितनी एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है, ठीक है, इसके लिए भी लॉ बन चुका था। बट जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड थे वो समहाउ मैनेज कि हम ये जो लॉ है उसको वो नहीं माने, और इस लॉ को कहीं ना कहीं से उन्होंने ब्रेक कर दिया था। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल जो डाउट था उसको बताया था कि जैसे कि एक लैंड है, बहुत बड़ी लैंड है, ठीक है, अब बिग लैंडलॉर्ड है, अब वो खुद तो वहां पे काम कर नहीं रहा है, बट उसने बहुत सारे टेनेंट्स को क्या है एम्प्लॉय करके रखा है, ठीक है, एम्प्लॉय करके रखा है, बहुत सारे टेनेंट्स है, ये डॉट्स आप समझ लो टेनेंट्स है। तो इसने क्या किया, अब गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि आपके पास इतनी ही लैंड होनी चाहिए, तो इसने क्या किया, लैंड को ब्रेक किया, मतलब इन डॉक्यूमेंट्स ओनली, ठीक है, ऑन डॉक्यूमेंट्स ओनली इसने लैंड को ब्रेक किया और अपने एक एक टेनेंट के नाम कर दिया, ठीक है। बट इन टेनेंट्स को एक्चुअली में पता नहीं था कि ये लैंड जो है उनके नेम से है, ठीक है, या ये लैंड उन्हीं की है, उनको पता ही नहीं था। उनसे जैसे
थंबप्रिंट ले लिया गया था और ऐसे करके उनके नेम पे कर दी गई थी, बट उनको एक्चुअली में ये लैंड्स मिली नहीं। तो समहाउ जो लैंड जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सेस में लैंड थी ना, उन्होंने क्या किया, किसी और के नेम पे लैंड ले ली, बट एक्चुअली में जो है वो उसका जो बेनिफिट थे वो लैंड ओनिंग क्लास वो खुद ही ले रहे थे। ओके, so now the tenants who worked on someone else's land were given greater legal security against eviction, but this provision was rarely implemented। कि अब जो टेनेंट्स भी जिसके अंडर वर्क कर रहे थे, ठीक है, किसी के भी अंडर वर्क कर रहे थे, अब उनको बहुत डोमिनेट किया जाता था। ठीक है, अब सपोज किसी ने लोन ले रखा था, एक लैंड ले रखी थी लोन में या फिर रेंट पे ले रखी थी, ठीक है, अब उसने बोला कि ठीक है ये लैंड ले ली मैंने आपसे रेंट पे और अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा तो मैं आपको क्या है इसके पैसे या कुछ कुछ अमाउंट आपको देता रहूंगा, जो भी अगर 100 केजीज मेरा प्रोडक्शन हुआ है तो 60 केजीज आपको दे दूंगा, 40 केजी मैं रख लूंगा, ऐसे करके इसने जो ये टेनेंट्स है ऐसे काम करते थे। बट जो रियली में जो लैंड ओनिंग क्लासेस थे ना या बिग लैंडलॉर्ड्स थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था कि कभी किसी साल ड्रॉट पड़ गया है या फिर रेनफॉल सफिशिएंट रेनफॉल हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, उनको एट लास्ट वो चाहिए होता था कि हमें 60 केजीज वेट चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं मिलती थी तो वो क्या करते थे, वो डोमिनेट करते थे, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में ही हमारे गवर्नमेंट ने अंडर दिस लैंड रिफॉर्म्स काफी एक्शंस लिए थे, ठीक है, प्रोविजंस निकाले थे, बट उसको बहुत ही एक्चुअली में वो इम्प्लीमेंट बहुत रेयरली इम्प्लीमेंट होते थे, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता था, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लैंड रिफॉर्म्स and it was not easy to turn these well meaning policies on agriculture into genuine and effective action, ठीक है, it was not easy to turn these इतने पॉलिसीज बनाना एग्रीकल्चर में, ठीक है, इनटू जेन्युइन एंड इफेक्टिव एक्शन, और इफेक्टिव एक्शन लेना बहुत इजी भी नहीं था, ठीक है। क्यों इजी नहीं था? बिकॉज गवर्नमेंट वाज इनेबल टू मोबिलाइज रूरल लैंडलेस पुअर। अब जो लैंडलेस पुअर थे, रूरल जो थे, उनको आदत हो गई थी कि उनको लगता था यही जीवन है और मतलब हमें ऐसे ही दुख दर्द देखने हैं, ऐसे ही जीवन चलता है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह वो जाना ही नहीं चाह रहे थे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह उन्हें भेजना बहुत मुश्किल था। सेकेंडली, द लैंड ओनर्स वर वेरी पावरफुल एंड बिल्डेड कंसिडरेबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब लैंड ओनर्स बहुत पावरफुल थे, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, पॉलिटिशियंस जो थे वो उनसे मतलब काफी सपोर्टिव थे, उनके जो लैंड ओनर्स थे उनके, इवन कुछ लैंड ओनर्स भी क्या थे, वो पॉलिटिशियंस थे। तो ये दो मेन रीजन है कि ये जो हमारा इतना एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए वो जेन्युइनली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। सो मेनी प्रपोजल्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स वर आइदर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू लॉज और व्हेन मेड इनटू लॉज दे रिमेन्ड ओनली ऑन पेपर। वन ऑफ द मेन रीजन, बहुत सारे ऐसे लैंड रिफॉर्म्स के जो तरीके थे जिनको ट्रांसलेट तो किया गया था, बिल तो पास हुआ था, बट एक्चुअली में वो लॉ बन नहीं पाए, और यू कैन से कि लॉ बन भी गया तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं था ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो कि खाली पेपर में ही रह सकते, पेपर में ही रहा, ठीक है, कि अब क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को नॉलेज नहीं थी, तो लोग जो पॉलिटिशियन जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे या फिर